Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 27. And title of today's lecture is Evaluation of Effectiveness. What we will cover in today's lecture, the first question that we will address is what are the common methods of measurements. We are dealing with the evaluations, so first we should have some idea about the different methods that we can use for measurement purpose. Next, the control and evaluation process, in which I will share a very generic evaluation method that you can use in different scenarios. Then we have evaluating effectiveness, then stages of copy testing, then media evaluation, and campaign and IMC evaluation. Control and evaluation. The strategy formulation and implementation processes are a prelude to control and evaluation. This process involves an examination of the organization's performance for the purpose of determining. We know strategic marketing basically consists of 3 steps: strategy formulation, strategy implementation, and strategy control or evaluation. For any plan, it's very important that you should, at the end of the plan, you should evaluate, analyze, and check the different parameters that will give you some idea where your plan actually stands, how nicely or how poorly the plan performs. For every planning, it's strongly recommended you should have the control and evaluation process. That's why in today's lecture I am only concentrating on control and evaluation side of the planning. The next one is what actually you want to know by conducting the control and evaluation process. Actually, you want to know how well the organization has done. We have to take some yardstick, we have to find out some parameters, or we have to develop some criteria where we can check, we can evaluate the performance of any department, any function, or any organization. So today we have a lot of discussion on the same topic, and at the end of today's lecture you have a very clear-cut idea what is control and evaluation is. And suppose if you have to perform, being a manager, you have to perform a task of control and evaluation, how you can start this, how you can conduct this, and how you can manage the control and evaluation process. So the first thing, how well the organization has done, that we want to know. Second is what actions should be taken in the light of this performance. नेचुरली जब आप कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन करते हैं, किसी भी, जब भी हम बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, कोई भी हम जब काम करते हैं उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि उसके एंड पर आप उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें. परफॉर्मेंस एवेल्यूएट से क्या है, हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली वेयर वी स्टैंड, हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ गुड मैनेजर you should develop some sort of a control and evaluation process. अब एक तो ये है कि जी आपके पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. दूसरा ये है कि जब वो आपकी परफॉर्मेंस आपको पता चल जाती है, सपोज़ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब है कि आपका प्लान अच्छा है, तो उसमें फिर ये क्राइटेरिया है कि आप उसी प्लान को दोबारा रिपीट कर लें विद स्मॉल मॉडिफिकेशन.
और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपकी जो से रिज़ल्ट जो से या आपकी परफॉर्मेंस जो सी दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर उसमें वो यही है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन द लाइट ऑफ दिस परफॉर्मेंस। तो वो आपको कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की क्या वजह है, और जो भी रीज़न्स हैं फिर आप उनको एड्रेस करते हैं। जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुई है, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो सी दैट इज़ नॉट एज़ पर द प्लान, फिर आप उनको चेंज करते हैं, उनकी जगह न्यू स्ट्रेटजीज़ लेकर आते हैं। अपनी उन मिस्टेक से, उन यानी कि जो भी आपकी जो शॉर्टफॉल रहेगा उनसे आप एक सबक सीखते हैं और नए प्लान में आप एक बेटर स्ट्रेटजीज़ के साथ, इम्प्रूव वर्जन के साथ आप दोबारा एक प्लान बनाते हैं। अब ये तो है बेसिकली कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन। अब नेक्स्ट जो है कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, कि अगर आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है, अपनी वैल्यूएशन करनी है, आपने चेक करना है, तो उसमें स्पेशली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू और मोर स्पेसिफिकली फॉर द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें जो से आपके जो कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? 6 of the most common methods of measurement used for control and evaluation purposes. Meaning I'm going to share 6 methods, and the control and evaluation process is not limited to only these 6 methods. There are so many other methods that you can use, but these are the methods that commonly used or more widely used by the manager just to evaluate, just to check the performance of their organization or department. The first one is return on investment, ROI. सबको मालूम है कि ROI क्या है। आपने कितना ही नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आया। अगेन यानी कि बाज़ केसेस में तो सिर्फ ROI ही सिंगल क्राइटेरिया होता है कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन पर्पस के लिए, लेकिन अब इसके साथ और बहुत सारे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, आप किस किस्म के बिजनेस के साथ आप अटैच हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सिंगल यही है कि आपने अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखनी है, तो फिर ठीक है, फिर ये मेथड जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि द ओनली क्राइटेरिया फॉर द परफॉर्मेंस and to measure the performance is return on investment, so use the return on investment as a method. अच्छा, उसके अलावा सेल्स ग्रोथ और मार्केट शेयर। जब हम सेल्स की बात करते हैं या मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि यानी कि ओवर द ईयर्स या आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जो हमारी जो सेल्स है वो उसके कितने उसमें इंक्रीज हुआ है। सपोज 2009 में अगर आपने लेट्स से कि 100,000 यूनिट बेचे थे, 2010 में आपने कितने बेचे हैं? लेट्स से कि अगर आप यू आर एबल टू सेल 150,000 यूनिट्स, देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50% इन यूर सेल। इससे 2010 में आपने कितने बेचे हैं, 2011 में क्या बेचे हैं, अगर आपके क्या नाम है वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और सिमिलरली अगर आपकी क्या नाम है सेल जो सी है वो कम हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो परफॉर्मेंस जो सी है वो भी डाउनवर्ड उसका ट्रेंड है। इसी तरह जो मार्केट शेयर है, सपोज पाकिस्तान मार्केट में जो लैपटॉप है, पाकिस्तान मार्केट कंसिस्ट ऑफ दी लैपटॉप मार्केट का जो है 100,000 लैपटॉप एवरी ईयर पाकिस्तान में लेट से बिकते हैं। अब आपकी कंपनी ने अगर क्या नाम है 2009 में जो है 10,000 लैपटॉप बेचे हैं, तो दैट मीन्स कि योर कंपनी है अ मार्केट शेयर ऑफ 10% ऑफ पाकिस्तान लैपटॉप मार्केट। 2010 में इफ़ यू आर एबल टू इंक्रीज योर सेल and you are able to sell 20,000
laptop. That means कि now your market share is 20%. तो ये जो है बाज़ औक़ात कंपनीज जो सी हैं, स्पेशली इफ़ दे आर द सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज, sometimes they use the method where they only measure the sales growth as well as the market share. Number 3, costs. Again, sometimes हम यूज़ करते हैं the cost as a measurement method, और उसमें क्या है कि सपोज अगर आप क्या नाम है कोई भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो सी है, लेट्स से कि वो आपकी 100 रुपीज़ है, और ओवर द ईयर अगर आपने उसको रिड्यूस कर लिया, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द सेम स्टफ, same by using the same material, and you are using the each and everything as you are using earlier, but now you are able to reduce your cost. Again, it's a good indicator. And as far as the measurement is concerned, we will say that this is a good practice. इसके अलावा अगर आप क्या नाम है और मेथड्स में यानी जानना चाह रहे हैं तो उसमें एक और मेथड जो है दिस इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Sometimes companies also consider if they are performing well, if they are able to develop over the years new products, they are able to increase their already product profile, and they have more items from production point of view, and they are concentrating more, and they are working betterly or nicely from the new product development point of view. So again, it's a good indicator, and you can use it as a performance measurement method. And finally, at number 5, we have the relationship with stakeholders. If you are able to develop good relationship with your stakeholders, again we know कि what are the stakeholders. ये आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, आपके रिटेलर्स, होलसेलर्स, आपके कंज्यूमर, आपके सप्लायर्स, ये सारे जो से आपके स्टेक होल्डर्स हैं. इफ़ यू आर एबल टू डेवलप गुड रिलेशनशिप, द रीज़न इज़ बिकॉज यू आर एबल टू डेवलप more better business ties with your stakeholder, and you have good relationship. That means कि your performance is improving. And at number 6, we have the management performance. All those who are running the affairs of the organization, इसमें आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, आपकी क्या नाम है मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. अगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को वो हेड कर रहे हैं, अगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, दे आर परफॉर्मिंग वेल एज ए मैनेजर, तो अगेन it's a method of measurement and you can use it. So these are the 6 most commonly used method that we can use if we want to do the control and evaluation process. In the next slide, I'm going to share a very simple generic control and evaluation process. Naturally, I will explain this model, this process with you, but before explaining this process, I just want to share why I choose this. The reason is because this is very simple and generic evaluation process model. One. Second, you can use the same method in different places. This is not a specific model for a specific organization or in a specific environment. This is a generic model, very simple model, so you can use it in diversified environment. So let's start what is in this model. We will start, actually this is a process, so there is no starting or ending point is there, but for our better understanding we are starting it from here. This is the identification of goals and other endpoints to be measured. देखिए, कोई भी आपने एवेल्यूएशन या प्रोसेस मॉडल जो है अगर आपने उसको डेवलप करना है, तो पहली चीज़ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू मेजर. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं और फाइनली आप क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं. देखिए ना, बीइंग अ स्टूडेंट,
आपकी भी कंट्रोल एंड वैल्यूएशन होती है। आपके कंट्रोल एंड वैल्यूएशन क्या है कि आपके क्विज़ेस लिए जाते हैं, असाइनमेंट्स हैं, फिर आपके फर्स्ट सेशनल हैं, सेकंड सेशनल हैं या फाइनल हैं, ये आपके सारे क्या हैं जो एग्ज़ाम है, ये सारा जो है आपका कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस है। अब अगर हम इसी ये जो मॉडल जो है इसको हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको यानी कि आप ही का जो प्रोसेस है एवेल्यूएशन का, उस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप ये देखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड अदर एंड पॉइंट्स टू बी मेजर्ड। अब हम ये देखते हैं कि जी आपको एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाया गया है और बाद में जो आपको एवेल्यूएशन की जाती है वो ये देखा जाता है कि आपको उस कोर्स से रिलेटेड कितनी नो हाउ है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, वो कोर्स पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। नाउ यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटजीज, नाउ यू कैन डेवलप, यू नो द टर्मिनोलॉजी। ये जो आपको दी जाती है कि ये डिफाइंड डेफिनेशन दी जाती हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको टर्मिनोलॉजी का पता भी है कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। फिर आपको कहा जाता है कि जी आप ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या मॉडल हैं, इनको एक्सप्लेन करें। तो यही होता है कि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर क्या नाम है आपको कोई प्रोसेस या आपको कोई मॉडल पढ़ाया है कि आप उसको समझ भी सकें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फिर बाज़ वक़्त आपसे कहा जाता है कि जी आप इसको डिस्कस करें, एवेल्युएट करें, एनालाइज करें। उसमें वो देखा जाता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, आप क्या नाम है किसी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मेजर कर सकते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देख सकते हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पर ये है कि जब आप कोई भी कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस आप डेवलप करना चाहें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि जी आपने क्या चीज़ मेजर करनी है। एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम में हमने ये देखना होता है कि अगर इस स्टूडेंट ने ये कोर्स कवर किया है तो उसकी इस कोर्स के मुतालिक कोर्स से पहले और बाद की उसका जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नंबर 2 पर जो है जो अगर हम यहाँ से सिर्फ मूव कर जाएं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स। जब आपने ये मेजर करने लिया, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप क्या मेजर करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो सी आपकी टास्क है दैट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, कि आप कुछ स्टैंडर्ड हैं कि जी इसका मतलब ये है। जैसे आपके केस में हम लोग कहते हैं जी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड मीन्स कि जी लेट्स से कि जी 90% प्लस होने चाहिए, बी ग्रेड मीन्स कि जी 80% प्लस होने चाहिए। अब ये ना कि ए बी सी से तो किसी को नहीं, अगर आप बाहर किसी को कहते हैं कि जी मेरा बी आया, मेरा ए आया, तो किसी बेचारे को क्या पता। अगर आप उसको बता दें जी ए मीन्स 90% प्लस, वो कहेगा जी वेरी गुड मार्क्स। लेकिन ये भी हो सकता है जी ए बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 80% पर भी है। तो ये जो सारा है कि जी ए से क्या मुराद है, बी से क्या मुराद है, सी से क्या मुराद है, ठीक है, या क्या नाम है सी जी पी ए जो सी है, जी पी ए जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, 3 क्या है, 4 क्या है। देखिए अब अगर किसी को आप कहते हैं कि जी मेरी क्या नाम है जी पी ए जो सी है, मेरी इस सेमेस्टर में जी पी ए जो सी वो 4 आई है, वो कहेगा पता नहीं, एक आम ले मैंने उसको पता होगा यार सिर्फ 4 ही है। लेकिन अब आपको पता है कि यार 4 और इस 4 से तो ऊपर होती है कुछ नहीं। 4 मीन्स के जी 100% इक्वल टू 100%, 4 आउट ऑफ 4। लेकिन वो अच्छा मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा यार आप सिर्फ कह रहे हैं जी 4 आई। तो ये क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, ये हमने ही बनाया ना जी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ए है, बी है, सी है, या और भी बहुत है। तो ये जो आप कोई भी जब करते हैं तो फिर आप उसको लिंक करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स के, जी इससे मुराद ये होगी, इससे मुराद ये होगी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एवरेज है। फिर मेजरमेंट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। फिर जो आपने नेक्स्ट जो है यानी कि यहाँ से हम यहाँ पर आए, यहाँ से अब हम नेक्स्ट इस पे चले गए, मेजरमेंट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। अब आपने जो परफॉर्मेंस जो सी है, ये जो आपने यहाँ पर जो अपने स्टैंडर्ड्स आपने जो से डिसाइड किए हैं, डिटरमिन किए हैं, आप उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या नाम है अगर 90% मार्क्स लिए हैं तो नेचुरली आपका क्या नाम है ए ग्रेड आ जाएगा। ए ग्रेड आ गया तो दैट मीन्स उस सब्जेक्ट में आपकी यानी कि 4 जीपीए बन जाएगी कि दिस इज़ अ मैक्सिमम,
वैसे तो जीपीए जो से आपकी वो सारे सब्जेक्ट, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके क्या नाम है 80 हैं तो अगर वो बी ग्रेड है तो आपको बी ग्रेड अवार्ड हो जाएगा, उसी हिसाब से आपकी क्या नाम है जीपीए जो सी आपकी बनेगी उस सब्जेक्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप जो परफॉर्मेंस जो है उस पर आप करेंगे और आप उस पर डिसाइड करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो सी है इस तरह की है, आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की है, आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, आपकी परफॉर्मेंस जो सी वो एवरेज है, और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में जो है डज द परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड्स। अब आपने ये जो क्या नाम है मेजरमेंट की है और उसके बाद आपने ए बी सी या उसको 4 3 2 जो भी आपने किया है, या 98%, 80% या 70% आपने जो मार्क्स एलोकेट किए हैं, वो अब बताएंगे कि जी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। ए ग्रेड है, परफॉर्मेंस अच्छी है, खुदा ना खासा सी है, उससे नीचे आ गए तो परफॉर्मेंस बुरी है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सिंपल मॉडल है कि आपके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं। अगर तो आपकी जो परफॉर्मेंस जो है कि वो अगर आपके जो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर रही है, दैट मीन्स कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, फिर ये है कि आपने जो भी स्ट्रेटजीज प्लान्स या आपने मैकेनिज्म यूज़ किया है आप उसी ही को कंटिन्यू करते हैं। ये एक सजेशन है, ठीक है। या अगर आप उसको, क्योंकि यहाँ से यह मालूम हो रहा है कि आपकी जो प्लान्स आपने बनाए थे वो इतने अच्छे प्लान्स थे कि उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। तो नेचुरली जब रिज़ल्ट अच्छे आए तो फिर अक्लमंदी तो यही है कि आप उन्हीं प्लान्स को दोबारा रिवाइज करें, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब चेंजेस करेंगे तो उन चेंजेस का कोई भी इम्पेक्ट आएगा। एक रिस्की जॉब है, और ऑलरेडी अगर आपको इन्हीं के थ्रू परफॉर्मेंस आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपके प्लान जो से वो अच्छे हैं, तो फिर रिकमेंडेड यही होता है कि आप उन्हीं प्लान्स को आगे लेकर चलें। अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर खुदा ना खास्ता जो सा यहाँ पर जो सा आपकी जो परफॉर्मेंस जो सी है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही, बिलो है, पुअर परफॉर्मेंस है, फिर आपके पास क्या होंगे, टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, आपने मेहनत की होगी, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपकी मेहनत जो सी थी वो उस तरह की मेहनत नहीं थी जिससे कि अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे। फिर आपको सोचना होगा कि आपने कहाँ पर जो है वो गलती की है। सिमिलरली जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि एक प्लान बनाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया और उसके रिजल्ट्स जो से हैं वो नहीं आए जो कि हमने उस प्लान में इनकॉर्पोरेट किए थे। और उसके लिए नेचुरली फिर ये है कि यू विल गो इनटू द डिटेल, you will find out the problematic areas, you find out the your mistakes or those areas के where you are unable to perform nicely, और उस हिसाब से आप अपने प्लान को चेंज करेंगे, उसमें करेक्टिव मेजर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उसके बाद क्या है कि दोनों सूरतों में फिर आप दोबारा जब आप नया प्लान बनाएंगे तो फिर साथ आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जी अब ये जो मैंने प्लान बनाया है तो इसमें जो है मेरे गोल्स क्या हैं, और जो चीज़ जो मैंने मेजर करनी, मैंने क्या चीज़ मेजर करनी है। जैसे भी हमने लास्ट स्लाइड में हमने कवर डिफरेंट मेथड्स कवर किए, देयर आर 6 मेथड्स आर देयर। तो उसमें अगर आपने ROI को देखना है, आप ROI को देखना, सेल्स ग्रोथ को देखना है वो देखें, मार्केट शेयर की बात करनी है मार्केट शेयर की, अगर आप रिलेशनशिप की बात करनी है कि यू वांट टू एस्टेब्लिश बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, तो फिर आप उसी ही चीज़ को लेकर जाएंगे, उसी के लिए क्राइटेरिया बनाएंगे और उसी चीज़ को फिर आप मेजर करेंगे। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ईजी जेनरिक कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। और ये आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाएं, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस यू कैन मेक अ वेरी गुड कस्टमाइज कंट्रोल एंड एवेल्युएशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है वी आर गोइंग टू एवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस। जैसे भी हमने बात की कि आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप, अब वही चीज़ जो है हम उसको इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं कि मेरे पास एक यानी कि क्वेश्चन था कि मैंने अब आपके सामने जो बाकी जो चीज़ें जो हैं कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस की,
उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मैं किस चीज़ पे करूं। अब हमारी इससे आगे जितनी भी डिस्कशन होगी वो हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो एवेल्युएशन कर रहे हैं हम एडवर्टाइजिंग कंपेन की डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने आपको कंट्रोल एंड एवेल्युएशन को हमने स्टडी करना है। तो जब मैं बात करूँ तो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो हम लोग इसको यानी कंट्रोल एंड एवेल्युएशन जो प्रोसेस जो है इसको हम अप्लाई करेंगे एडवर्टाइजिंग पर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन पर, या मोर स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं एडवर्टाइजिंग कंपेन की बात कर रहा हूं कि अगर एक एडवर्टाइजिंग कंपेन रन की है एक यानी कि ब्रांड के लिए, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पर भी ये है कि इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस में जो है टाइप्स एंड स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंटल रिसर्च ये होती है कि जब आप क्या नाम में एक प्रोसेस में होते हैं, जब आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं उस दौरान भी आप उसको टेस्ट करते रहते हैं, कि ये नहीं है कि जी आप क्या नाम में चुप करके काम कर रहे हैं, सब कुछ बना दिए और बाद में जाते हैं पता चलता है कि जी ये चीज़ में तो ये ड्रॉबैक है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि एक आपकी होती है डेवलपमेंटल रिसर्च, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एनीथिंग, आप कोई कंपेन डेवलप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप उसको भी ब्रेकअप करें और आफ्टर क्रॉसिंग अ सर्टन लेवल और स्टेज आप उसको चेक करें, उसको इवेल्युएट करें। ये नहीं है कि क्या नाम है आंखें बंद करके काम करते जा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि जी कहीं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर एक मिस्टेक या ब्लंडर हो चुका है, तो वो क्या है कि वो आपके टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जीज सारी जो से हैं वो वेस्ट हो जाती है। उसके अलावा एक और है कॉन्करेंट रिसर्च, कि जब आप यानी कि उसकी यानी कि इन बिटवीन की फेजेस में हो, तो वहाँ पर एक तो है ना कि आप जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पर है, अब यह है कि आपने कोई प्रोडक्ट आपने कर लिया और अभी आप उसको यानी कि मार्केट ले जाने से पहले जो है, तो उससे पहले अब आप जो है उसको जब फाइनलाइज कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ पर भी कंकरेंट रिसर्च जो है इट्स इम्पॉर्टेंट जस्ट टू इवेल्युएट। अच्छा, इसी तरह एक और जो है पोस्ट टेस्टिंग रिसर्च। जब आपने कोई भी काम कर लिया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आपने एड कंपेन को जो है वो यानी कि रन कर दिया, तो उसके बाद आप एक पोस्ट टेस्टिंग रिसर्च करते हैं कि जी अब उसका इम्पेक्ट क्या है। एक एडवर्टाइजिंग कंपेन थी, आपने उसको रन कर दिया, आपने उसको प्लान किया, सब कुछ किया, अब उसके बाद अब आप देखते हैं कि उसके पोस्ट टेस्टिंग में कि इसकी जो हमने सारी चीज़ें उसका इम्पैक्ट या उसका रिस्पॉन्स क्या आया। अच्छा, इसके अलावा एक डायग्नोस्टिक रिसर्च भी होती है। डायग्नोस्टिक रिसर्च का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पर आप ना कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डायग्नोज करना चाह रहे हैं, कहीं पे आपको एक आ रही है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब ये कि उसकी रीजंस क्या हैं, क्यों वो चीज़ें उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह कि हमने उसको प्लान किया था, या एक यानी कि ख़ास स्टेज पर रिजल्ट जो से आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ पर आप एक डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ जस्ट टू फाइंड आउट द रीज़न एंड कॉजेज़, व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेज़ ऑफ दैट प्रॉब्लम। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है फैक्टर्स टू बी इवैल्यूएटेड, कि अगर आपने फैक्टर्स अब आप देखने हैं कि अगर हम इसकी बात करें एडवर्टाइजिंग कंपेन की बात करें कि अगर आपने उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, तो उसमें जो है हम ये कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन इफेक्ट्स। एडवर्टाइजिंग क्या है, बेसिकली आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या है कि जिस तरह आपने अपना मैसेज प्रिपेयर किया, आपने जिस टारगेट मार्केट के लिए प्रिपेयर किया, वो टारगेट मार्केट आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, उस पर उसका कोई इम्पेक्ट हुआ, तो उसके लिए ये है कि आपने क्या देखना, आपने कम्युनिकेशन इफेक्ट्स देखना है कि दे आर एबल टू गेट द नॉलेज, they are able to understand your product, they are able to know about your brands। तो अगर तो ये है, दैट मीन्स कि आपकी जो कम्युनिकेशन इफेक्ट्स जो है, जो भी आपने यूज़ किए, आपने मीडियाज़ यूज़ किए हैं, आपने अपना मैसेज के लिए जो वर्डिंग यूज़ की है, द वे यू प्रेजेंटेड यूर मैसेज,
वो जो से अच्छा है। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन इफेक्ट्स में हो। फिर उसके अलावा एक और चीज़ है सेल्स इम्पैक्ट। अगर तो आपका क्या नाम है वो मैसेज जो है वो नाइसली कम्युनिकेट हुआ है, अगर तो आपकी क्या नाम है जो कंपेन है वो इन्हीं के नाइसली एग्जीक्यूट की गई है, तो उससे क्या होगा कि नेचुरली आपकी जो सेल्स है उस पर इम्पेक्ट आएगा, या तो वो इम्प्रूव होंगे। और अगर आपकी क्या नाम है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपकी परफॉर्मेंस यानी कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी सेल्स पे कोई इम्पेक्ट ना आए और वो रिड्यूस भी हो सकती है। तो ये इसके अलावा एक और जो है वो है कि कॉपी टेस्टिंग सर्विसेज। अब कॉपी टेस्टिंग सर्विसेज में क्या है, डेवलप नॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब कॉपी टेस्टिंग क्या होता है कि जो आपकी जो भी मैसेज की जो कॉपी है, अब उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि डेवलप नॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज, कि आप डिसाइड करें कि आपके नॉर्म्स क्या आते हैं हर प्रोडक्ट्स के लिए, आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आप क्या करना चाह रहे थे। अच्छा, इसी तरह स्टेजेस ऑफ कॉपी टेस्टिंग में जो है आपकी यानी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज़ मैसेज स्ट्रेटजी, कि आप अपनी यानी कि कॉपी में क्या आप मैसेज देना चाह रहे थे। मैसेज क्या, देखें कोई भी जब ऐड होता है उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, ठीक है। जैसे आता है कि जी आपका रिलायबल, डॉलर्स इज रिलायबल, या कोई कहता है कि जी मोर इकोनॉमिकल। अब ये मैसेज है, या ड्यूरेबल, बैक्ड विद एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, या फ्री पार्ट्स अवेलेबिलिटी, या फ्री SMS बंडल, 30 पैसा पर मिनट। अब ये क्या है कि ये सारे आपके मैसेजेस हैं जो आप किसी भी अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इसको भी आपने देखना होता है। फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या आता, मैसेज तो अपनी जगह पर है, लेकिन नेचुरली आपका कोई कॉन्सेप्ट भी तो होगा कि हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट उस मैसेज को। आपने जो कोई भी आप यानी कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन देख लें, उसमें जो भी है कि जी वो म्यूज़िक बज रहा है, वो आ रहा है कि सेलिब्रिटी को यूज़ किया हुआ है, वो आके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, या कहने में कोई म्यूज़िकल ग्रुप है वो परफॉर्म कर रहा है और साथ ही अपना मैसेज दे रहा है, तो ये डिपेंड करता है। या आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं और उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सारी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है। तो उसके अलावा क्या है कि प्री टेस्टिंग, इसमें भी आप जब ये सारा काम कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट टेस्ट आप करेंगे पहले, यानी कि जस्ट आप अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट जो है वर्केबल भी है या नहीं, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसका क्या इम्पेक्ट होगा। फिर उसके बाद आप उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं कि उसी जो है अपने मैसेज और कॉन्सेप्ट को आप एक स्मॉल स्केल पर उसको प्री टेस्ट करते हैं। अगेन देखें वही बात है कि कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में हम ये कहते हैं कि आप अपनी हर एक क्रिटिकल स्टेज के बाद उसकी वैल्यूएशन करें। ये नहीं है कि चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर कहीं पर कोई ख़राबी होगी, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और फॉल्ट इज़ देयर और द परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू मार्क, अगर आप उसको टाइमली चेक कर लेंगे, दैट विल इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर एक क्या नाम है प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अगर किसी जगह पे परफॉर्मेंस सही नहीं है और अगर आप उसके साथ ही यानी कि चलते जा रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम भी क्या नाम है बड़ी हो जाएगी, इश्यूज भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि प्री टेस्टिंग एक रिकमेंड किया जाता है। फिर वही डायग्नोस्टिक, कि अगर आपको कहीं पर कोई वीक एरिया नज़र आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नज़र आ रहा है, तो उसको डायग्नोस करें, और उसके बाद ये है कि उसके लिए कोई भी जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसको यूज़ करें, और उस प्रॉब्लम को जो है उसको आपने एलिमिनेट करना है। प्लानिंग जो सी होती है, ये जो प्लान्स होते हैं वो प्रॉब्लम के साथ लेकर नहीं चला जाता, और मैनेजर्स का ये काम है
रिगार्डलेस कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका काम ये है कि एवरीडे आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, और मैनेजर जो सा होता है वो उनको मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब ये है कि उनके जो ड्रास्टिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, उनको एलिमिनेट करता है, और जो प्रोडक्टिव साइड होती है उसको वो क्या नाम है आगे लेकर चलता है। तो यहाँ पर भी है कि स्टेजेस ऑफ कॉपी टेस्टिंग में मैसेज स्ट्रेटेजी है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है, प्री टेस्टिंग है, डायग्नोस्टिक है। उसके अलावा यह है कि स्टेजेस ऑफ कॉपी टेस्टिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसको हम कहते हैं कंकरेंट टेस्टिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या है कि ट्रैकिंग स्टडीज। अब ट्रैकिंग स्टडीज में जो फर्स्ट है दैट इज एटीट्यूड टेस्ट्स। अब आप ट्रैक कर रहे हैं, और एटीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल डिस्पोजिशंस टुवर्ड अ पर्सन, थिंग, आइडिया और सिचुएशन। आप उसमें जाके आप अपने जो है टारगेट मार्केट है उसके एटीट्यूड को चेक करते हैं कि व्हाई दे प्रेफर सर्टेन थिंग्स, व्हाई दे हैव द फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, और सिमिलर अगर उनका अनफेवरेबल है उसकी क्या रीज़न है। आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वो क्यों सर्टेन चीज़ों को पसंद करते हैं और बाज़ चीज़ों को वो नापसंद करते हैं। तो उसके लिए जो आप करते हैं उसको हम कहते हैं एटीट्यूड टेस्ट। और ये जो है ये क्या नाम है, पर्सन की मदद हो सकता है, थिंक भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको हम पसंद भी कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी रीजनिंग क्या है, लाइकिंग की रीजनिंग क्या है और डिसलाइकिंग की रीजनिंग क्या है। फिर उसके अलावा एक है वेव एनालिसिस। अब वेव एनालिसिस में क्या होता है, सीरीज ऑफ इंटरव्यू ड्यूरिंग अ कैंपेन। इसमें आप ना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और जिसमें आप पूछते हैं कि जी आप नेचुरली कि आपको इसके मतलब क्या ख्याल है, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपके नज़दीक इस पर फर्दर कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, आपको इस मैसेज से क्या समझ आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल यूज़ आवर प्रोडक्ट येस और नॉट, जो भी है। तो आप क्या करते हैं, वेव एनालिसिस क्या है कि अ सीरीज ऑफ इंटरव्यू ड्यूरिंग अ कैंपेन जस्ट टू गेट द क्विक फीडबैक। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो है नंबर 3 कंज्यूमर डायरीज। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स कीप अ डायरी ड्यूरिंग अ कैंपेन एंड रिकॉर्ड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ब्रांड परचेज्ड एंड ब्रांड यूज्ड। इसमें आप कुछ यानी सिलेक्टेड कंज्यूमर्स को आप चूज़ करते हैं और उन्हें आप उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी जो फीडबैक है या जो आपका रिस्पांस है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ड्यूरिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आप उसको नोट करते जाएं। अगर तो आपको क्या नाम है कोई चीज़ अच्छी लगती है ब्रांड परचेज या ब्रांड यूजिंग से रिलेटेड, उसको नोट कर लें। अगर आपको कोई बुरी लगती है आप वो भी नोट कर लें। जब भी ऐड आए तो आप उसमें से बताएंगे कि आपको क्या लगा है, आपको ये ऐड देखकर और हमारे ब्रांड से मुतालिक आपके ज़हन में क्या बात आ रही है, क्या आपके इश्यूज़ हैं, क्या कंसर्न है, किस चीज़ को आप पसंद करते हैं, किस चीज़ को आप नापसंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो सी ये क्या है, ब्रांड परचेज्ड और ब्रांड यूजेज से रिलेटेड है। और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप वो नोट करते जाएँ और बाद में आप वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं और आपको एक अच्छी यानी कि वैल्यूएशन मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि जी ये जो सेक्टर कंज्यूमर हैं ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन या ब्रांड के मुतालिक क्या सोच रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, उसके अलावा इसी में ही कुछ और कंकरेंट टेस्टिंग में जो है ट्रैकिंग स्टडीज़ की हम बात कर रहे थे, एक और है दैट इज़ पेंट्री चेक्स। अब पेंट्री चेक में क्या, रिसर्चर गोज टू होम्स इन द टारगेट मार्केट एंड आस्क व्हाट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स दे हैव परचेज्ड और यूज्ड रिसेंटली। अब आप क्या करते हैं, आप वॉक इन करते हैं, आप डायरेक्टली जो है अपने टारगेट मार्केट में सिलेक्टेड घरों में जाते हैं और वहाँ पे कंज्यूमर से पूछते हैं कि जी सपोज आपने जो लास्ट जो सा डिटर्जेंट खरीदा था वो कौन सा डिटर्जेंट खरीदा था, आपने अगर सोप यूज़ किया है तो वो कौन सा ब्रांड यूज़ किया है, आपने कुकिंग ऑयल लिया है तो आपने लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में आपने कौन सा कुकिंग ऑयल का ब्रांड परचेज़ किया है।
तो वो इस तरह जाके जब ये वो इस किस्म की यानी कि रिसर्च कंडक्ट करते हैं, डायरेक्टली क्या नाम है टारगेट मार्केट के पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेंट्री चेक्स। अच्छा, इसके अलावा अगेन एक बहुत यानी फेमस टेस्ट मार्केटिंग, testing product variation as well as elements of a finished ad, a campaign or a media mix into or more potential markets। अब टेस्ट मार्केटिंग की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ये जो प्रोडक्ट के केस में क्या है कि आप कोई भी फुल फ्लैज लॉन्च से पहले वही प्रोडक्ट स्मॉल स्केल पर एक या दो मार्केट्स में आप टेस्ट करते हैं और उसका रिस्पांस देखते हैं, बजाय इसके कि आप एक फुल फ्लैज लॉन्च कर दें। इस पर एक एक्सपेंडिचर भी आता है और आपको कुछ यानी कि मार्केट का अंदाज़ा भी नहीं है, तो उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप फुल फ्लैज लॉन्च पे जाने से पहले आप टेस्ट मार्केटिंग करें और उसमें देखें कि अगर आपको क्या नाम है कोई प्रॉब्लम या इश्यूज आते हैं तो स्मॉल स्केल पे उनको कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना ईजी होता है। लेकिन अगर आप क्या नाम है मेजर लॉन्च करने जा रहे हैं, फुल फ्लैज लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जब कोई इश्यूज आएंगे तो फिर बाज़ औक़ात इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज देम, और अगर आप उनको मैनेज नहीं कर सकेंगे तो दैट विल हैविंग अ बैड इम्पैक्ट अबाउट योर ब्रांड। वो आपके ब्रांड के मुतालिक कोई अच्छा यानी कि रिस्पांस नहीं देंगे। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट टेस्टिंग आफ्टर एग्जीक्यूशन रिसर्च, ये आपने पोस्ट टेस्टिंग है, आपने एग्जीक्यूशन आपने कर दी, तो उसके बाद आप क्या नाम है किस किस्म के टेस्ट से वो कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें एक आता है आपका मेमोरी टेस्ट है, the assumption that an advertisement leaves a mental residue with the person who has been exposed to it। देखिए मेमोरी टेस्ट क्या है कि मैंने एक ऐड देखा है, तो उसके बाद वो जो ऐड है मेरे माइंड में क्या चीज़ रह गई है, मैंने उस ऐड में से क्या चीज़ यानी कि मुझे समझ में आई है और कौन सी जो चीज़ है वो स्टिल सेव इन माई माइंड। और उसके लिए हम दो यूनिक टेक्निक यूज़ करते हैं, एक है रिकॉग्निशन टेस्ट और एक होता है रिकॉल टेस्ट। अब रिकॉग्निशन टेस्ट में क्या होता है कि हम उसको वही जो ऐड है यानी कि प्रिंट फॉर्म में है तो उसको हम एक दफ़ा दिखा कर उसको कहते हैं कि आपने ये आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। बाज़ का तो थोड़ी सी देर के लिए उसको फॉर फ्यू सेकंड्स दिखाते हैं, उसके बाद उसको छुपा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं वो क्या नज़र आया, ये क्या चीज़ है, आपने कभी पहले देखी हुई है, आपको कोई आइडिया है क्या है। अब यह रिकॉग्निशन कि जहाँ पे वो अगर वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स कि योर एड और एडवर्टाइजमेंट हैज सम इम्पैक्ट एंड पीपल हैव दोज मैसेजेस, कलर्स, लोगोज और ड्रेसेस और प्रोडक्ट मैसेज इनटू देयर मेमोरी। लेकिन अगर उसको कोई नहीं या रिकॉल कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि आपके जो सारे जो एफर्ट्स थे वो यूजलेस हैं और वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। रिकॉल टेस्ट में भी यही होता है कि इसमें आप उसको विजुलाइज करवाते हैं, इट कैन बी टेलीविजन कमर्शियल, आप उसको दिखाते हैं उसकी कोई एक पार्ट या उसका एक सीन दिखा के कहते हैं कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि क्या चीज़ है, या आप बता सकते हैं कि इससे पहले या इसके बाद क्या था, ये किस चीज़ का ऐड है, कौन सी प्रोडक्ट का, इसमें मैसेज क्या था। तो आपने उसमें ये देखना होता है कि अगर तो क्या नाम है कंज्यूमर उसको रिकॉल कर लेते हैं, जैसे आज भी अगर आप बात करें बहुत सारे ऐड में आपसे आप उसको रिकॉल कर लोगे बिकॉज दे आर द गुड ऐड और एटलीस्ट दे हैव सम इम्पैक्ट ऑन अस। लेकिन उसके अलावा बेशुमार ऐड होंगे, उनको अगर आप मुझे दिखा भी दें तो इवन देन मे बी आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल देम। मैंने हो सकता है उनको देखा हो लेकिन अब मेरी वो मेमोरी में नहीं है। तो ये मेमोरी टेस्ट होते हैं, इसको भी ऑफ एंड ऑन जो है रिसर्चर्स या मार्केटर्स या एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जस्ट टू एवेलुएट, जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अच्छा, इसके अलावा एक और परसुएशन टेस्ट,
The basic format is to ask consumers how likely they are to buy a specific brand. अब परसुएशन में क्या होता है कि आप उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके फीचर्स हैं, उनको विजुलाइज करवाते हैं, उनको दिखाते हैं, फिजिकली भी आप दिखा सकते हैं या उससे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आप उनसे पूछते हैं कि जी आप इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या आपका कोई इंटरेस्ट है। तो उसको हम कहते हैं कि परसुएशन टेस्ट, और उसमें आपने यही देखना होता है कि हाउ लाइकली और हाउ मेनी टाइम्स ही विल बाय योर प्रोडक्ट। लाइकेबिलिटी टेस्ट, टेस्ट यूज्ड टू चेक एनी ऑफ द मेथड बेटर एबल टू प्रेडिक्ट सेल्स इम्पैक्ट। अब आप इसमें क्या है कि आप उनसे ये पूछते हैं कि जी अगर ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम ये काम करें, ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट करें, ये प्रोडक्ट हम डेवलप करें, तो क्या आप उसको ख़रीदेंगे, या आप यानी कि नॉर्मली ये उस केस में होता है जहाँ पे हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और हम क्या नाम है देखना चाह रहे हैं कि जी उसका रिस्पांस क्या आएगा मार्केट में, तो हम उसके लिए जाकर डिफरेंट कंज्यूमर के साथ शेयर करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, आपका इसके मुताल्लिक क्या ख्याल है, आप इसको लाइक करेंगे या नहीं लाइक करेंगे, यू विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट, येस और नो। अच्छा, अब जो डिफरेंस है कि परसुएशन टेस्ट और लाइकलिबिलिटी में, देखें परसुएशन में क्या है कि आप उससे बड़ा पूछ लेते हैं कि आप उसको कितनी दफ़ा यानी हाउ मैनी टाइम्स यू विल बाय, यानी कि आप उसको ट्राई करेंगे और आप उसको कितना रेगुलर बेसिस पे आपने उसको ख़रीदने हैं या ऑफ एंड ऑन ख़रीदने हैं। लेकिन यहाँ पे लाइकलिबिलिटी टेस्ट में जो है आप सिर्फ ये देखते हैं कि आप ना एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर के मतलब आप बात कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट इस किस्म की है और ये उसका है, तो आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके अलावा इंक्वायरी टेस्ट, measure the number of responses to an advertisement। आपने जब कोई भी आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करते हैं उसके अगेंस्ट इंक्वायरीज जनरेट होती हैं। पीपल विल इंक्वायर बाय कॉलिंग, बाय सेंडिंग ईमेल, बाय विजिटिंग योर वेबसाइट, और देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज कि जहाँ से आपको पता चलता है कि जी इसका क्या है। अगर तो आपने कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन की और उसके अगेंस्ट आपकी जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं, नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज़ हैं, नंबर ऑफ़ हिट्स ऑन योर वेबसाइट, अगर ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन या मैसेज हो सकता है वो इफ़ेक्टिव है और इट इज़ एबल टू जनरेट सम इंटरेस्ट इन योर टारगेट मार्केट। अच्छा, उसी के मुकाबले में एक और है स्कैनर रिसर्च, स्कैनर एट द चेकआउट टू कलेक्ट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। अब आपको मालूम है कि इवन अब पाकिस्तान में भी जो स्कैनर्स का यूजेज है वो बहुत है, जो बार कोड होते हैं उसको आप स्कैन करते हैं। अब हमारे यहाँ पर तो अभी हम वो सिंपल वही है कि स्कैनिंग और बार कोडिंग को यूज़ कर रहे हैं, बाहर उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया विद कंज्यूमर लॉयल्टी कार्ड के साथ, कि बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा जाऊं और वो करें, तो वो एक आपको कार्ड देते हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, उसको जब आप स्वाइप किया जाता है तो आपका डेटा आ जाता है और उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और वो जब आपको वो सारी चीज़ें स्कैन कर रहे होते हैं तो वो आपके नाम के साथ अटैच हो जाती हैं कि सो एंड सो मिस्टर ABC, उसका जो भी है उसका हाउस एड्रेस उसका ये, और प्लस ये है कि वो आपका सारा जो आप परचेजिंग करते हैं वो आपके नाम के साथ यानी कि सेफ होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ स्कैनर रिसर्च से भी यह है कि सपोज एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन आने से पहले मैंने कभी वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी थी, लेकिन जब वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन आई है तो नाउ आई स्टार्टेड बाइंग द सेम प्रोडक्ट, मैंने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी शुरू कर दी। तो अब ये इट्स अ गुड साइन कि पहले उसका यूज़र नहीं था, लेकिन अब ये है कि वो अब कैसे पता चलेगा, ये थ्रू वो स्कैनिंग डेटा जो उनसे वो जो स्कैन कर रहा है, ही इज़ यानी कि स्टोरिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ माई परचेज़। उसको मालूम है कि इसकी जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसमें इसने कभी ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी है, लेकिन अब ये ख़रीद रहा है और साथ ही उसकी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन या कोई प्रमोशनल कैंपेन आई है, तो अगेन इट्स यानी कि गुड साइन
एंड यू कैन यूज दी स्कैनर रिसर्च वेयर यू आर एबल टू फाइंड आउट कि जी वो बंदा चीज़ खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, या उसका यूजेज इंक्रीज हुआ है। एक ये भी होता है कि पहले वो 1-2 आइटम खरीद रहा था, अब उसने 3-4 खरीदने शुरू कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट ऑन द सिंगल सोर्स रिसर्च, use of electronic media, researchers are closer to showing a causal relationship between advertising and sales। अब सिंगल सोर्स यूजर रिसर्च में क्या है कि इसमें आपका ये जो स्कैनर डेटा होता है, ये जो कंप्यूटर्स हैं या बाकी आपका जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको आप ना एक जगह पे सेव कर लेते हैं और उससे आप जो रिजल्ट निकालते हैं उसको हम कहते हैं सिंगल सोर्स रिसर्च। जितना भी आप एनालिसिस करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, उसका बाइंग पैटर्न देखते हैं, उसकी स्पेंडिंग देखते हैं, उसकी क्या नाम है टाइमिंग देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि जी वो कितनी दफ़ा वीक में शॉपिंग करता है, कहाँ से करता है, कौन से ब्रांड खरीदता है। अब ये सारा क्या है कि आपको डिफरेंट सोर्स से आता है, स्कैनर से आ सकता है, किसी और सोर्स से आ सकता है, जिसको आपने एक ही सिस्टम में आपने डाला हुआ है और वहाँ से अब आप उसका देखे आप उसका एनालिसिस कर लें, उसको हम कहते हैं सिंगल सोर्स रिसर्च। एंड नॉर्मली जो होता है ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज होते हैं उसके थ्रू की जाती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने मीडिया को एवेलुएट करना है, क्योंकि मीडिया गेन, हमने जब मीडिया को स्टडी किया तो हमें मालूम है कि मीडिया गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। और जब हम मीडिया एवेल्यूएशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज एवेल्युएटिंग ऑडियंस एक्सपोजर। और एवेल्युएटिंग ऑडियंस एक्सपोजर में क्या है, चेक एस्टिमेट्स इन मीडिया प्लान अगेंस्ट व्हीकल परफॉर्मेंस। हम जो व्हीकल जैसे हमने स्टडी किया था, व्हीकल से मुराद ये होती है कि जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं फॉर योर एडवर्टाइजिंग। जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो हम उसको किसी न किसी प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। मिसाल के तौर पर जी क्रिकेट मैच आ रहा है, कोई सीरीज़ हो रही है, आप कहते हैं जी उसको हम स्पॉन्सर करेंगे, तो अब आप क्या है, आप उस सीरीज़ को, उस क्रिकेट मैच को एज ए व्हीकल यूज़ कर रहे हैं टू एडवर्टाइज योर मैसेज। कोई प्रोग्राम है, कोई ड्रामा है, कोई म्यूज़िकल कंसर्ट है, तो वो आपका व्हीकल है जो आप यूज़ कर रहे हैं टू प्रमोट और यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज। अब यहाँ पर क्या है कि आपने एवेल्युएटिंग ऑडियंस एक्सपोजर देखना है, और उसके लिए हम कह रहे हैं कि चेक एस्टिमेट्स इन मीडिया प्लान अगेंस्ट व्हीकल परफॉर्मेंस। अब आप ये देखें जितना पॉपुलर प्रोग्राम होगा उतना आपका रिस्पॉन्स आएगा। लोग आपका ऐड देखने के लिए तो नहीं बैठे, एक्चुअली तो वो मैच एंजॉय कर रहे हैं, वो म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितना पॉपुलर ड्रामा होगा उतनी उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, और उतने ही चांस ज़्यादा है कि जब आपका ऐड आएगा उतने ही ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, क्योंकि लोग उस टाइम टीवी देख रहे हैं, व्यूअरशिप इज़ हाई, तो नेचुरली जब आपका ऐड आएगा तो उसकी भी आपकी व्यूअरशिप जो है उसकी भी रेटिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, सेकंड जो है क्रिटिकल एवेल्युएशन इज़ वेदर रीच एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव्स वर ऑब्टेन्ड। हमने रीच और फ्रीक्वेंसी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपने भी यही देखना है कि आपका जो मैसेज जो है वो कितने लोगों तक पहुंचा, और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी आपने जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अगेन आप जो है मीडिया की वैल्यूएशन रीच एंड फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। फिर उसे मीडिया वैल्यूएशन में जो सेकंड स्टेप है दैट इज एडवर्टाइजिंग आरओआई एंड मीडिया एफिशिएंसी। अब एडवर्टाइजिंग आरओआई या मार्केटिंग आरओआई से वही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने एडवर्टाइजिंग पे एक सर्टेन अमाउंट आपने स्पेंड किया है उसके अगेंस्ट आप कितना, यानी ये सेल्स रेवेन्यू या क्या इम्पैक्ट आप यू आर एबल टू क्रिएट। आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया तो उससे क्या हुआ, अवेयरनेस क्रिएट हुई, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई, आपकी कोई व्यूअरशिप इंक्रीज हुई, आपकी इंक्वायरीज की कोई क्वांटिटी बढ़ी, आपके रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें आप देखते थे कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग एडवर्टाइजिंग वर्सेस रेवेन्यू इट जनरेट्स, कि आपने इतने पैसे लगाए तो उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू क्या मिला वो आप देख सकते हैं। वेयर आउट एंड अदर टेक्नोलॉजी
द पॉइंट वेयर द एडवर्टाइजिंग गेट्स नो रिस्पॉन्स और लेस रिस्पॉन्स। फिर आपने ये भी देखना होता है कि जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था कि एक सर्टन लेवल से जब आपकी एडवर्टाइजिंग ऊपर चली जाती है तो इट्स वेस्टेज। जिनसे हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी भी जो सी है वो आपकी, जब हमने उसमें स्टडी किया था 7 से ऊपर जब चली जाती है तो उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके एफर्ट्स, आपका रेवेन्यू जो है वो खर्च हो रहा होता है, लेकिन आप कोई मज़ीद जो है ना आप रीच यू आर अनएबल टू इंक्रीज। तो यहाँ पे भी उसने कहा है कि जी वी आर आउट, आपको मालूम होना चाहिए कि इस सर्टन लेवल तक तो आप जाएंगे तो आपका कोई है, लेकिन जब इससे ज़्यादा आप एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वो सारी यूजलेस है, बिकॉज यू आर एबल टू कवर और यू आर एबल टू अचीव योर मैक्सिमम रीच। इसी तरह एक और है मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये आपने ये देखना होता है कि जो मीडिया मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका अपने बेहतर से बेहतर उसका यूजेज करना होता है। ये नहीं कि आप मीडिया यूज़ भी कर रहे हैं और आपके रिजल्ट भी उस तरह नहीं आ रहे। कम से कम मीडिया यूज़ करके आपने अपने मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, जिसको हम कहते हैं मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द मीडिया। डायरेक्ट रिस्पॉन्स, evaluate ads containing elements that can be returned by using direct response counts। एक ये भी है कि जी आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं कि आप कोई भी है, जैसे आपका होता है कि जी ऐड दिया है, उसका कोई कूपन है कि इसको अगर आप लेकर आएंगे कि 10% डिस्काउंट, आपको चल जाता है कि इतने आपने यानी इंसर्शंस दी हैं और उसके बाद कितनी आपको लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो एक वो भी है कि जी डायरेक्ट रिस्पॉन्स, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स प्रमोशंस, हमें मालूम है कि सेल्स प्रमोशंस क्या है। सेल्स प्रमोशंस के टूल्स हमने बहुत डिटेल में कवर किए थे। मे बी नेसेसरी टू इवैल्यूएट बोथ ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रमोशंस। आपने कोई भी ऑफर दी हुई है, कंज्यूमर एंड पे भी हो सकती है और आपके यानी कि ट्रेड एंड पर भी हो सकती है। अब आपने ये देखना होता है कि आपने कोई प्रमोशंस दिया, आपने 1 बाई 1 गेट 1 फ्री, आपने ₹5 ऑफ कर दिया, या 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या आपने उसके साथ कोई चीज़ अटैच कर दी है, या आपके नाम कोई फ्री कोई उसके कोई गिव अवेज दे रहे हैं, तो उसका क्या आपका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो भी आपकी सेल्स प्रमोशन को इवैल्यूएट किया जाता है। पे आउट प्लान, ब्रेक इवन एनालिसिस, आप इनको भी यानी कि इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप when you are able to pay और आप ब्रेक इवन यानी उस पर कब पहुंचेंगे, आपका जो ब्रेक इवन जो पॉइंट है आप उस पर कब पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन आपकी कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन में आपको हेल्प करती हैं। फिर उसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, examine the success of the program in getting the message out to the target in terms of output and outcomes। ये आप जो है कंपेन IMC वैल्यूएशन में जो है जब आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वैल्यूएशन करेंगे, जहाँ पे आप डायरेक्ट रिस्पांस को देखेंगे, सेल्स प्रमोशन देखें, वहाँ पे अपने पब्लिक रिलेशंस को भी देखना है कि पब्लिक रिलेशंस का क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपका मैसेज वहाँ पर पहुँचा और पॉजिटिवली पहुँचे, एंड पीपल हैव गुड आइडिया, गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ब्रांड। अगर तो ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपकी पब्लिक रिलेशंस भी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो है कंपेन एंड IMC वैल्यूएशन, IMC कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी। ये बेसिकली दिस इज़ अ न्यू डिसिप्लिन, अभी इस पर रिसेंटली काम शुरू हुआ है, लोगों ने यानी कि ये देखना शुरू किया है कि जी जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो इसमें अब क्या है, कैन बी इवैल्यूएट यूजिंग IMC ऑडिट। जिस तरह कंपनीज के ऑडिट होते हैं, देखा जाता है कि जी उन्होंने जितने भी आपके जो प्रोसीजर्स हैं, पैसा कहाँ से आया, कैसे खर्च किया, सही खर्च किया, गलत खर्च किया, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज से उनको यानी कि फॉलो किया। अब कंपनी के पास क्या है क्या नहीं है सारे इस तरह क्या नाम है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी है। जब आप डिफरेंट आप मीडियाज, डिफरेंट टूल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप एवेल्यूएट करते हैं कि कौन से टूल का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका आप ऑडिट करते हैं। सपोज हमने एडवर्टाइजिंग पे इतना खर्च किया, हमने सेल्स प्रमोशन पे इतना खर्च किया, हमने डायरेक्ट मार्केटिंग पे इतना खर्च किया, हमने इंटरनेट मार्केटिंग पे इतना खर्च किया, हमने पब्लिक रिलेशंस पे ये स्पेंडिंग की, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और अगर क्या नाम है किसी एक की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वाई नॉट वी स्पेंड मोर ऑन दैट, और किसी की नहीं है तो हम उसको क्या नाम है ख़त्म कर दें।
डायरेक्ट मार्केटिंग जो है उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो हमें सूट नहीं करती, वी आर परफॉर्मिंग नॉट अप टू द मार्क while we are performing very good on public relationing. So why not we increase our budget for the public relationing instead of spending or wasting money on direct marketing. तो ये सारा क्या है कि evaluating using IMC audit, और उसके में क्या है कि content analysis, आप content analysis करते हैं, the material produced by an organization, आप देखते हैं कि content क्या है, जो material आपने produce किया है उसकी quality है या नहीं है। क्वालिटी होगी तो आपको रिस्पांस अच्छा आएगा। अगर आपके कंटेंट ही जो सी हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो नेचुरली आपको फेवरेबल रिस्पांस नहीं आएगा। एक और जो है मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स क्या होता है, जब हम क्या नाम है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में कम्युनिकेशन ऑडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए विजिट अ रिटेल स्टोर टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। आप किसी भी रियल एनवायरनमेंट में जाके एक स्टोर की देखते हैं कि वहाँ पर कंज्यूमर कैसे आता है, वो क्या क्वेश्चन करता है, उसकी बाइंग पैटर्न क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसने कैसे यानी कि प्रोडक्ट को चूज़ किया, उसने अगर कोई बात की और सेल्समैन ने उसको क्या जवाब दिया, उसके कंसर्न्स क्या आते हैं या उसने कुछ भी नहीं पूछा। अब ये सारा क्या है मिस्ट्री शॉपिंग उसको हम कहते हैं कि जहाँ पर आप एक रियल स्टोर को वहाँ जाके आप विज़िट करते हैं और आप वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं और उस सारे जो है उसको आप एक तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जी कंज्यूमर कैसे आया, उसने कैसे कम्युनिकेट किया, उसने क्या बात पूछी नहीं पूछी, और उसने कैसे जो सी अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। इसके अलावा सेम ये जो हम यहाँ पर आप करते हैं वही काम आप फैंटम फ़ोन कॉल्स, आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स करते हैं, फ़ोन और ईमेल्स टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। आप डायरेक्टली उनको ईमेल करते हैं या उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर आपने ये चीज़ ख़रीदनी है आप कहाँ से ख़रीदेंगे और किस बेस पे ख़रीदेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आपको फीचर्स चाहिए तो अब कौन से फीचर्स हैं जो आप जिनको आप इम्पोर्टेंस देंगे। अब ये सारे क्या हैं कि ये आप यानी कि टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपेन एंड IMC वैल्यूएशन स्पेशल एडवर्टाइजिंग सिचुएशंस। रिटेल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। अब रिटेल एडवर्टाइजिंग में क्या है कि आप जनरेट स्टोर ट्रैफिक। रिटेल में आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए होते हैं। आजकल जैसे पाकिस्तान में भी ट्रेंड आया है, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, वर्ल्ड में भी बड़े अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, गल्फ में बड़े अच्छे हैं, एडवांस कंट्रीज़ में उससे भी अच्छे हैं। अब ये शॉपिंग मॉल जो होते हैं इनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि इसमें आपने ट्रैफिक जनरेट करनी होती है। यू हैव टू ब्रिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उतने ही चांसेस है कि आपकी यानी कि सेल आपकी इंक्रीज़ होगी। तो पहला जो रिटेल में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने कितनी ट्रैफिक जनरेट की, हाउ मैनी पीपल आर विजिटिंग यूर शॉप और मॉल। उसके लिए एक सिंपल काउंट है, आप उसको काउंट कर लेंगे जी डेली जो है जी 10,000 पीपल आर विजिटिंग आवर शॉपिंग मॉल, या हमारी जो है आउटलेट जो सी है उसमें रोज़ाना 50 लोग विज़िट करते हैं या 10 लोग विज़िट करते हैं या 100 लोग विज़िट करते हैं। अच्छा, विजिबिलिटी अगेन पार्टिसिपेशन काउंट्स। अब जैसे मॉल होते हैं अगर आप कभी जाएं तो उसमें से वो लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लोकल रेडियोज़ FM जो है वो लाइव कवरेज कर रहे होते हैं, बाज़ का टेलीविज़न के लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, बाज़ का आप म्यूज़िकल कंसर्ट कर रहे होते हैं, बाज़ का आप और वहाँ पर डिफरेंट कंपेन्स यानी कि चला रहे होते हैं। तो ये क्या है कि आपकी विजिबिलिटी क्या है, वहाँ पर आपकी जो पार्टिसिपेशन काउंट्स जो है उसकी क्या पोजीशन है, साइन अप एंड फिल आउट फॉर्म्स। फिर आप एक और भी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जहाँ पर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर आप मॉनिटर करते हैं, लोगों से कहते हैं जी आप जब एंटर हों तो साइन अप करें, ताकि यू आर एबल टू नो हाउ मैनी पीपल आर विजिटिंग, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग। या आप उनको क्या साथ एक लिंक क्रिएट करने के लिए, लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए आप उन्हें कहते हैं कि जी आप साइन अप करें एंड वी विल पास ऑन टू दी whenever we have a new offering discounted में, यानी कि कोई हमारे पास ऑफ़र आती है, नई प्रोडक्ट्स आती हैं तो वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो वो देखेंगे कितने लोग हैं कि जो आपके साथ साइन अप करते हैं। इस तरह लॉयल्टी है, पार्टिसिपेशन काउंट्स, यही जो मैं बात कर रहा था कि आप ये चाहते हैं कि जी वो पार्टिसिपेट करें, वो लॉयल रहें,
वो आप ही की शॉप पर या उसी ही पर्टिकुलर मॉल में आए या वो ही ब्रांड्स खरीदें। तो लॉयल्टी जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल के बाद भी सेकंड न्यूज़ आपका आता है B2B एडवर्टाइजिंग, बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। इसमें अब क्या है कि लीड काउंट बेस्ड ऑन कॉल्स, ईमेल्स एंड कार्ड्स रिटर्न्स टू द एडवर्टाइजर्स। देखिए बिजनेस टू बिजनेस में आपने क्या होता है, आपने सेल्स लीड जनरेट करनी होती है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं मार्केटिंग की, प्रमोशंस की या एडवर्टाइजिंग की, तो उसमें क्या है कि आपने यहाँ पर वो यही देख के आ रहा है कि आपकी कॉल्स कितनी इंक्रीज हुई, आपको कितनी ईमेल्स आई, आपने कोई कार्ड अगर भेजा तो कितने लोगों ने वो आपको फिल करके रिटर्न किया है। ये सारी चीज़ें जो है आप उसको देखते हैं। फिर उसके अलावा कन्वर्जन्स रेट जो है आप उसको वैल्यूएट करते हैं कि आपने कितनी सेल्स लीड जनरेट हुई, कितने लोगों ने रिस्पांस दिया और उनमें से कितने लोगों को आपने कन्वर्ट किया बाय क्लोजिंग अ डील। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम B2B बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद क्या नाम है, नेक्स्ट आपका आ रहा है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इंटरनेशनल मार्केटिंग इन डिटेल और ग्लोबल, यानी कि आप बिजनेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में क्या है कि वैल्यूएशन शुड फोकस ऑन प्री टेस्टिंग। इट्स नॉट एन ईजी टू एंटर इनटू अ इंटरनेशनल मार्केट। उसके अपने यानी कि इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने डायनामिक्स हैं। जैसे within the country or the region maybe you don't have serious cultural issues, इंटरनेशनल में जो से बहुत सीरियस कल्चरल इश्यूज आते हैं। इस तरह बाकी भी जो से आपके प्रोसीजर्स हैं, आपके जो सिस्टम्स हैं, आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके जो लॉज हैं, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वैल्यूएशन शुड फोकस ऑन प्री टेस्टिंग। जब आप इंटरनेशनल की बात करें तो बी केयरफुल और उसको प्री टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें ताकि आप किसी किस्म का ब्लंडर इनटू अ न्यू मार्केट ना कर सकें। अच्छा, उसके अलावा एक और जो नेक्स्ट जो है दैट इज हेल्प्स करेक्ट मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर मिसकम्युनिकेशन। अगर आपको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में बाज़ का इश्यूज आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस इस लैंग्वेज की वजह से, तो अगर आपको कोई क्या ना मिसकम्युनिकेशन आ रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करें, उस मिसकम्युनिकेशन को जो है या क्या नाम है जो प्रॉब्लम जो है उसको आप एड्रेस करें ताकि वो कोई मिसकम्युनिकेट होकर आपके लिए कोई बड़ा इशू ना बन जाए। इसी के साथ आज के लेक्चर क्या नाम है एंड करते हैं। और ये वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई इस लेक्चर के लिए। और उसके बाद क्या नाम है हमेशा की तरह एक छोटी सी अच्छी बात, और आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि लीव एवरीथिंग अ लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट। ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ये हमने जैसे भी हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये मुल्क है, ये इसके लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिस्टम्स हैं, तो हम इनको किसी एक अप लेवल पर इसको लेकर जाएं कि जब हम इनको छोड़कर जाएं तो ये उससे बेहतर हों जैसी कि हमें मिली थी। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे रास्ते में, हमारे डेली रूटीन में जो भी अगर कोई भी चीज़ हमें मिलती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्रूव करें, और जब हम उसको छोड़ के जाएँ तो वो उससे कहीं बेहतर हो जैसी कि हमें मिली थी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।